So, as the chapter's name suggests, input, output, memory, and storage devices. So, first we will discuss about the input, output, and other devices of the computer system. First, have a look on what is computer system. As we know, computer is comprises of three major things: input unit, processing unit, and output unit. And this processing unit is called as CPU, and CPU contains two things. One is processing unit and second one is memory. Memory, as we know, can be divided into two types: primary memory and secondary memory. As we all are using smartphone, and when we have a look on the smartphone, we see the two types of memory. One is RAM and second one is ROM. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी हम कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं आज के टाइम में, तो हम सबसे पहले देखते हैं उसमें रैम कितना है और रोम कितना है. Mostly nowadays, phones are coming with 4 GB RAM and 64 GB or 128 GB ROM. So, in the same way, our computer system have the same concept. Okay, the one is input unit, second one is processing unit, that is CPU, and other one is output devices that these things we are going to cover in this chapter. So first we'll talk about the memory or in a computer system. As we know, first you need to understand what is the use of memory. So memory in a computer system is used in two ways. The one memory is needed for temporary storage. Temporary storage means when computer does any type of. Everybody please mute your mic. Sir, on which page number is it? Page number A89. Okay, in memory, as we know, the computer system needs two type of memory. One is temporary memory, and temporary memory is used for storing intermediate results. Means when computers does something or some processing, that data need to be stored for some time. As we do the calculation of two numbers, and in between we need to store the carry of the data for such memory which stores the data for some time or temporarily are known as primary memory. And the second type of memory that stores the data as a permanent, as uh, long as we do not delete it, is called as secondary memory or primary memory. So in computer system, basically there are two types of memory that we require. One is primary memory. Primary memory is required to run the computer system, and secondary memory is used for permanent storage, um, or for the data is stored in the permanent storage for future use. So this was the introduction of memory. Now, in which unit we measure the memory? The measurement unit of, or the smallest unit of memory, is called as bit. And next unit is byte, next unit is kilobyte, then megabyte, then gigabyte, terabyte, petabyte, and exabyte. So these are this table you must be having on your screen. This these units are used to measure the memory. So bit is the smallest unit of memory in which we used to measure, and the largest memory size is available with us is exabyte. One bit means 0 or 1. As we know, bit or byte means data in computer system is stored in the form of binary digits, that is 0 or 1. तो एक जीरो या वन बोला जाता है एक बिट. अगर 8 बिट को हम एक साथ लिखते हैं, दैट बिकम्स अ बाइट. इफ वी राइट 1024 bytes together, then it becomes a 1 kilobyte.
byte. In the same way, the measurement units goes up. 1024 KB is 1 MB, 1024 MB is 1 GB, and 1024 PB is 1 EB, means exabyte. Sir, Yes. sir, what is meaning of RAM? See, that I'm going to discuss in the next topic. So why it is called as RAM, I'm just going to explain. Just see this next topic. Okay. Now we will discuss about in detail, that is main memory. Main memory is also called as primary memory. Why it is called primary memory? See, I explained two types of memory: primary and secondary memory. Primary memory is called why, because the processor or means CPU directly access these types of memory, RAM or ROM. दैट मीन्स जब भी प्रोसेसर किसी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है तो उसको बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. रैम means random access memory, rom means read only memory. Now you understand what is rom, what is difference between ram and rom. First, rom. Rom means read only memory. Read only memory means is in this type of memory we can only read the data, we cannot write anything in that memory. मतलब कि उसमें जो पहले से लिखा हुआ है सिर्फ हम उसी को पढ़ सकते हैं, हम उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हैं. We cannot write anything in that memory. For example, when you turn on or your mobile or laptop or any electronic gadget, you might have seen the name of company appears in the beginning. That name of a company is written into the ROM that we cannot change. आप सभी ने देखा होगा कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जब आप रीस्टार्ट ऑन ऑफ करते हैं तो क्या होता है कि आप उस कंपनी का नेम देखते हैं, उस कंपनी का लोगो देखते हैं, तो वो कंपनी का नेम और लोगो रोम में एक ही बार स्टोर कर दिया जाता है. तो जैसे ही वो डिवाइस स्टार्ट होता है तो उसमें जो भी डेटा लिखा हुआ है वो रीड होता है और उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. तो सच टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एज रोम. नाउ व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम. सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ रैंडम. रैंडम का मतलब होता है कि किसी भी लोकेशन, एक जैसे सपोज हमारे पास एक बड़े साइज की मेमोरी है तो उस मेमोरी में हम किसी भी लोकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने एक पेज लिया, पेज पर आपने फर्स्ट लाइन से पढ़ना या लिखना स्टार्ट किया और लास्ट लाइन तक गए, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल. मतलब एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं. लेकिन रैंडम का मतलब होता है कि वी कैन रैंडमली एक्सेस एनी पॉइंट. जैसे लाइन नंबर 1, और अगर हम मुझे सीधे जाना है लाइन नंबर 30 तो वी कैन डायरेक्टली जंप फ्रॉम लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 30. एंड फ्रॉम लाइन नंबर 30 सपोज आई वांट टू गो लाइन नंबर 8, so I can directly jump from line number 30 to line number 8. So such type of accessing method is called as random access. And this memory RAM provides this feature that we can randomly access any point, any nook and corner of the memory directly. That's why it is called as random access memory. So random access in random access memory, we can perform both operation, read and write. Means we can store something into that memory and we can storing means we can write anything, and reading means accessing anything. We can access any point of memory, any location of memory at any moment of time. That's why it is called as random access memory. But there is one difference, limitation. That is, I hope your question is clear. Sir, Yes. Tell me. sir, in mobile it is given 4 GB RAM. What it means? 4 GB means your size of memory is 4 GB. See this table. अभी मैंने यहाँ इस टेबल में बताया था 4 GB का मतलब है 1 GB का मतलब है 1024 MB. तो 1024 MB multiply 4. This is the size of your
RAM. That means this much bit or byte can be stored into your memory. If we'll multiply 1024 into 4, what will be the result? 4096. 40, 409. so 4096 MB data can be stored in your 4 GB RAM. Okay. Okay, sir. So now limitation. Now we'll talk about limitation. There is some limitation of this memory RAM. That means, did you get this thing? What is meaning of random? Random means we can directly access any location, any point of the memory at any time. This is called as random access. Now, limitation is, there is one limitation. Means these RAMs comes in very small sizes. रैम मेमोरी जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज में आता है, यानी कि 4 GB 6 GB। अभी हमारे पास 8 GB या 12 GB तक के रैम्स अवेलेबल है, लेकिन सम टाइम वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, बट वी डू नॉट हैव, वी कैन नॉट प्रोवाइड सच लार्ज कैपेसिटी ऑफ रैम। सेकेंड जो लिमिटेशन है इसका, दैट इज वोलेटाइल इन नेचर। मीन्स these RAMs can store data only till the power supply is on. As soon as the power supply is turned off, the data stored in RAM gets deleted or washed out. This is the main limitation of RAM. मीन्स कि जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है या आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हो, तो जो भी डेटा रैम में रहता है वो डिलीट हो जाता है। जैसे आपने किसी कंटेंट को कॉपी किया, कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी किया, कॉपी करते ही वो डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाता है? रैम में। लेकिन जैसे ही आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देते हो, तो जो भी कॉपी किया हुआ डेटा है वो डिलीट हो जाता है, यानी कि आप दोबारा उसको पेस्ट नहीं कर सकते। तो this is an example ki how the data gets deleted when we restart our mobile phone or computer. So this is, see this picture, this is RAM slot. ये जो आपको दिख रहा है ये एक रैम मेमोरी है जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे प्लग किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे एक स्लॉट होता है, उसी स्लॉट में इस रैम मेमोरी को हम लगा देते हैं। तो दिस मे बी द साइज ऑफ 2 GB और 4 GB रैम, यानी कि ये जो आपको स्लॉट दिख रहा है ये 2 GB या 4 GB का हो सकता है, और इसको हम मदरबोर्ड के, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे हम लगा देते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा है CPU, ये है हमारा प्रोसेसर, और ये है रोम मेमोरी। रोम मेमोरी इस तरह के आपने चिप्स देखे होंगे, ये इसको हम आईसी भी बोलते हैं। दैट इज आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप्स। तो इस तरह के जो चिप्स होते हैं वो परमानेंट स्टोरेज का काम करते हैं। दिस इज परमानेंट स्टोरेज, यानी कि रोम चिप्स हैं ये। और रोम चिप की साइज जो है कुछ MB में होती है, 2 MB 4 MB, इतनी ही MB की ये साइज रहती है इस रोम में। और ये प्रोसेसर है, ये यहाँ पे इस एरो से ये दिख रहा है कि ये दोनों जो प्रोसेसर है वो रैम और रोम दोनों को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। सो this is why we call it as a primary memory. अब यहाँ पे देखते हैं, टेबल एक गिवन है, दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल नेम है रीड ओनली मेमोरी। दोनों को क्यों बोला जाता है ये मैंने क्लियर कर दिया। डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। रैम इज अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस रैंडमली एट एनी टाइम। रैंडमली का मतलब होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, रैंडमली मीन्स कि एनी लोकेशन or any part of the memory can be accessed at any point of time. That means we can directly jump from one location to another location. जैसे पेज नंबर 20 से आप चले जाइए पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 से आप चले जाए पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 से आप चले जाइए पेज नंबर 20। तो such type of access is called as random access. Uses.
RAM allows the computer to read data quickly to run application. जितनी ज़्यादा रैम होगी आपके कंप्यूटर या मोबाइल में, आप उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा डेटा को हम रैम में रख सकते हैं. ROM stores the program required to initially boot the computer or reboot the computer. यानी कि ROM में क्या चीज़ स्टोर होता है कि जब हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, रीबूट करते हैं, तो रीबूट होने का जो एड्रेस होता है, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, उसका एड्रेस ROM स्टोर करके रखता है. दैट इज कॉल्ड एज मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR. ऑपरेशन सपोर्टेड. रैम में हम रीड और राइटिंग दोनों कर सकते हैं, रोम में हम सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं और राइटिंग नहीं कर सकते हैं. वोलेटिलिटी. रैम जो है वो वोलेटाइल होता है. वोलेटाइल का मतलब कि जब जैसे ही पावर ऑफ, डेटा डिलीट. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज वोलेटाइल नेचर. नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है पावर ऑफ हो या कुछ भी हो जाए, उसका डेटा डिलीट नहीं होगा. दैट इज नॉन वोलेटाइल. साइज. रैम जो है वो कुछ जीबी में आता है और रोम जो है वो कुछ एमबी में आता है. एमबी जो है वो छोटा होता है, जीबी बड़ा होता है. स्पीड. रैम की स्पीड ज़्यादा होती है. रैम चिप्स कैन रीड डेटा फास्टर देन रोम, एंड रोम की जो स्पीड है वो स्लोअर होती है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. अगर कोई डाउट है किसी को तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी पर. सर यस. साइज में लिखा हुआ है लार्जर देन रोम, बट हम लोग आजकल जो मोबाइल परचेज करते हैं उसमें रैम रहता है अबाउट 4 GB 6 GB 8 GB, बट और वहां पे रोम रहता है 64 GB और 128 GB. सी, देखिए जो आपके मोबाइल में रोम लिखा रहता है, दैट इज बेसिकली वो है सेकेंडरी स्टोरेज. ठीक है, लेकिन मोबाइल में के डेफिनेशन में ये चीज़ गलत लिखा रहता है कि दैट इज़ अ रोम. दैट इज़ नॉट बेसिकली अ रोम, दैट इज़ बेसिकली अ हार्ड डिस्क. ठीक. अब रोम उसको इसलिए बोला जाता है कि हमारा हार्ड डिस्क जो है एक प्लेटर की साइज में आता है. मैं अभी आगे दिखाऊंगा हार्ड डिस्क कैसा होता है. ठीक है. इंटरनल स्टोरेज. हाँ, इंटरनल स्टोरेज जो है मोबाइल में एक चिप के फॉर्म में आता है, और जो रोम है वो भी चिप की तरह रहता है. यानी कि दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन दोनों की फंक्शन अलग अलग है. रोम में हम डेटा एक बार जो स्टोर कर देंगे उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक. लेकिन जो मोबाइल में डेटा रहता है उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं. सो मोबाइल में जो डेफिनेशन रोम का लिखा है वो एक्चुअली गलत है. वहाँ पे रोम नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज होना चाहिए. ठीक है. तो मोबाइल वाले लोग जो है थैंक यू सर. फिजिकल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के वहाँ पे रोम लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट बेसिकली अ रोम, दैट इज बेसिकली अ सेकेंडरी स्टोरेज. ओके, एनीथिंग एल्स, एनीबडी? Someone has raised hand. Rakesh. Rakesh, want to ask anything? सर रोम को सर रोम को सर क्या रोम को क्या बोलते हैं सर? रोम एक तरह का नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है. रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी. ठीक. एक बार जो उसमें हम लिख देंगे वो परमानेंट रहेगा, उसको हम मैनुअली डिलीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रीड ओनली मेमोरी. दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी. नॉन वोलेटाइल का मतलब अभी मैंने बताया कि अगर पावर ऑफ हो गया तो भी उसका डेटा स्टोर रहेगा, वो चेंज नहीं होता है. ठीक है. सर यस दिवाकर. सर in mobile there is a pre apps are given, just Play Store, and this is not deleted, so this is example of ROM.
No, that is not example of ROM. They are basically called as stocked apps. ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है मोबाइल में तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही उस ऐप को स्टोर कर दिया जाता है। जिस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हटा सकते हैं उसी तरह से उस ऐप को भी नहीं हटा सकते हैं। अब वो तभी हटेगा जब आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दोगे। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने के लिए मोबाइल को रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट क्या होता है उसके लिए आप थोड़ा गूगल से जानकारी लीजिए कि व्हाट इज रूटिंग। रूटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यस एनीबॉडी एल्स? यस सर। यस अभिषेक। Yes, sir. Sir, can we replace our RAM with in our computer? Yes, sometimes your RAM becomes faulty or sometimes your RAMs become damaged due to electrical voltage supply or due to some moisture problem. So you can replace your RAM. RAM comes with a replaceable chip. See, this is a replaceable. These RAM slots are fixed with a clip, plastic locks. So just unlock that clips and you can remove out these RAMs. And if it is faulty or if you want to increase the size of RAM, you can replace it. Okay, Abhishek? Okay, thank you, sir. But you cannot replace ROM. रोम को रिप्लेस नहीं कर सकते, रैम को कर सकते हैं। बट नाउ डेज जो लैपटॉप्स आ रही हैं, जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं, उस पर रैम इनबिल्ट आ रहा है। अगर रैम में प्रॉब्लम हो गया तो पूरा मदरबोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के जितने सिस्टम आते हैं उसमें रिप्लेसेबल होता है, बट अभी लेटेस्ट जो मदरबोर्ड आ रहा है उसमें रैम इनबिल्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब होता है कि एज एंड व्हेन वी नीड वी प्लग इट टू द सिस्टम एंड इफ आवर नीड फिनिश्ड वी कैन रिमूव इट आउट। ठीक है, मतलब जब जरूरत हो हम उसको लगा सकते हैं, जब जरूरत नहीं है हम उसको निकाल सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ मेमोरी आर कॉल्ड एज सेकेंडरी storage devices, and secondary storage device is also called as auxiliary memory. Remember the name. Secondary storage devices are also called as auxiliary memory. Auxiliary का मतलब होता है external या extra. तो since primary memory has a limited storage capacity and it is not permanent. RAM की limitation हमने देखी कि RAM volatile होता है, मतलब जैसे ही पावर ऑफ होता है तो उसका सारा डेटा डिलीट हो जाता है। बट sometime we need a permanent storage and we want to store our files permanently for future use. So in that situation we need a permanent storage device that can store our data for future purpose until and unless we do not delete it manually. तो ऐसे सिचुएशन में हम कुछ डिफरेंट टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क की एक मैं फोटो दिखाता हूं आपको, जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले आप देखिए कि हार्ड डिस्क होता कैसा है, दिखता कैसा है, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। डू एनीबॉडी हैव सीन हार्ड डिस्क? एनीबॉडी? ये तू जान गया पढ़ रहे कि नहीं? डोंट डिस्कस हियर। So just have a look on this screen. So these are the images of hard disk. इस इमेज को देखिए, this is the internal diagram, internal structure of hard disk. ये जो एक प्लेट आपको दिख रही है, दिस इज द मैग्नेटिक प्लेट, और उस पे एक रीड राइट हेड लगा हुआ है। तो ये रीड राइट हेड जो है इसी हार्ड डिस्क के फ्लैटर पे कुछ भी डेटा को लिखता है, यानी कि सेव करता है, राइट करता है या रीड करता है। इस आर्म पे, इस हेड पे एक लेंस लगा होता है जो
डेटा को रीड और राइट करने के लिए एक लेजर बीम, लेजर लाइट यूज करता है। यानी कि अगर लिखना है तो उस पर लेजर लाइट से फोकस करेगा, वहाँ का जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो बर्न होगा और डेटा वहाँ स्टोर हो जाएगा। और रीड और राइट करने के लिए फिर से लेजर लाइट वहाँ पे फोकस करेगा और जो भी बिट और बाइट है उसको वो रीड कर लेगा। ये जो मैग्नेटिक ये जो प्लेट आपको दिख रही है, एक स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल से कोटिंग की जाती है जिसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड से कोटिंग करने के बाद इस पे मैग्नेटिक मटेरियल की एक लेयर चढ़ जाती है और जैसे ही हम उस पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उसके मैग्नेटिक मटेरियल्स चार्ज हो जाते हैं और वहाँ पे डेटा स्टोर हो जाता है। और ये जो प्लेटर है, ये जो डिस्क है, ये 5200 आरपीएम राउंड्स पर मिनट के हिसाब से ये रिवॉल्व करता रहता है। इट गेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द स्पीड ऑफ 5200 आरपीएम राउंड्स पर मिनट की स्पीड से ये रोटेट होता रहता है। यानी कि ये डिस्क जो है हमेशा घूमता रहता है, ठीक है। और इसी पे हमारा डेटा जो है स्टोर होता है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये हार्ड डिस्क के ही एग्जांपल है। ये इस तरह से हमारा हार्ड डिस्क बाहर से अगर आप देखेंगे तो ये हार्ड डिस्क ऐसा दिखेगा, इस पे कवर लगा रहता है और इसमें कुछ पोर्ट्स बने रहते हैं जो डेटा जिसको हम प्लग करते हैं। हार्ड डिस्क जो है दो टाइप्स के आते हैं, एक होता है साटा और एक होता है पाटा। SATA सीक्वेंशियल एक्सेस और पाटा का मतलब होता है पैरेलल एक्सेस। तो जो पैरेलल एक्सेस होता है वो फास्टर होता है और सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो थोड़ा स्लोअर होता है। आई होप दिस इज क्लियर। Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Next storage device is CD and DVD. CD and DVD both are an example of optical storage device. ये CD और DVD सभी ने देखा होगा, so I need not to explain more about these. CD, the storage size capacity of a CD is 700 MB only. 700 MB. And in case of DVD, the storage size is from 4.7 GB to 17 GB. यानी कि एक सीडी और डीवीडी में एक यही डिफरेंस है, दोनों एक ही जैसे होते हैं, फिजिकल साइज दोनों का एक ही जैसा होता है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी में डिफरेंस है। सीडी कैन स्टोर ओनली 700 MB while DVD कैन स्टोर फ्रॉम 4.7 GB to 17 GB। ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही है कि सीडी में डेटा एनालॉग फॉर्मेट में स्टोर होता है और डीवीडी में डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्मेट यानी कि बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, इसीलिए डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। तीसरा एक ऑप्टिकल स्टोरेज का ही डीवीडी का इन्हांस्ड वर्जन है, दैट इज ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क जो है वो डेटा स्टोर कर सकता है 25 GB से लेके 50 GB तक। और इसके नेम से ही पता चल रहा है। अब सीडी और ब्लू रे डिस्क और डीवीडी में क्या डिफरेंस है? तो दोनों के सिर्फ टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है। अगेन फिजिकल साइज जो डिस्क का है वो सेम है। डीवीडी को रीड करने के लिए ब्लू लेजर बीम्स को यूज किया जाता है और ब्लू रे डिस्क को रीड करने के लिए रेड लेजर बीम्स का यूज किया जाता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। What is thumb drive? बता रहा हूँ। थंब ड्राइव इज अ फ्लैश और सॉलिड स्टेट मेमोरी। It has no moving parts like magnetic storage or nor like a optical drive. Instead, ये आप समझ सकते हो, that is pen drive. Have you seen pen drive? Pen drive is called as thumb drive. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो Yes, sir. हार्ड डिस्क और देखिए हार्ड डिस्क में भी जो प्लेटर होता है वो रिवॉल्व करता है। सीडी डीवीडी या ब्लू रे डिस्क को भी जब हम कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये भी रिवॉल्व होता है। लेकिन
पेन ड्राइव और थंब ड्राइव में कोई भी रिवॉल्विंग आइटम नहीं होता है, ठीक है। इट कंटेन्स आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का नाम सुना होगा सभी ने। तो इस पेन ड्राइव के अंदर एक आईसी सर्किट होता है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, और इसकी साइज जो है 1 GB से लेके 256 GB तक की अवेलेबल है अभी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, और दिस इज also known as plug and play device, plug and play memory, यानी कि as and when we need, we plug it to the system, and as and when we do not need, we can plug out of the system. Next is a memory stick. Memory stick is also, memory stick is same like pen drive or memory drive, but these devices, these memory stick is used in case of in डिजिटल कैमरा, यानी कि जहाँ पे हमें बहुत ही स्लिक टाइप की मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमारे पास स्पेस कम होता है, तो या पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए जिसको हमें कैरी करके रखना होता है हमेशा, तो वैसी जगहों पे हम यूज़ करते हैं मेमोरी स्टिक को। यानी कि जैसे कैमरा, डिजिटल कैमरा, या कुछ ऐसे डिवाइसेस जो जिनमें हमें बड़े साइज़ की मेमोरी को लगाने की जगह नहीं होती है, तो वैसी जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड its storage technology is very similar to the pen drive. It is available in 4 GB to 128 GB storage. So there is a difference between, this meeting will end in 1 minute. So I will restart the meeting and you all are requested to join again. This is difference between primary memory and secondary memory. एक difference दिया हुआ है. So primary memory is directly connected to the CPU, यानी कि CPU से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। रैम जो है दैट इज वोलेटाइल, रोम इज नॉन वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी is directly accessed by CPU, and secondary storage is indirect access by CPU, indirectly access होता है। Primary memory provides faster data access, secondary memory provides slower data access। secondary memory से जो data transmission होता है वो slow होता है, and primary memory is used for processing the data, and secondary memory is used for storing the data. Primary memory is available in small size, while secondary memory is available in large size. Now we will discuss about the input devices.